एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो थोड़ा सा ऑफ बीट है बिकॉज़ मैं एक रिटन टेस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो ये फाउंडेशन अलग अलग तरीके की रिक्रूटमेंट ओपन करती है जिसमें एक पोस्ट होती है रिसोर्स पर्सन की जिसकी रिटर्न को आज आई एम गोइंग टू डिस्कस बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अपीयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू एंड दिस स्टेज। तो इसका फर्स्ट स्टेज ही एक्चुअली रिटन एग्ज़ाम होता है। बिफोर दैट आई थिंक आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल कर कैसे किया जाता है एंड उसमें क्या क्या आता है, अगर इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो यू कैन definitely ask me to make a video on that as well. But for now, I'm covering resource person test exclusively and what all came in the exam. So stage one exam hota hai for the resource person, which is about this paper which comprising of 35 objective question and around 5 subjective question, but out of 5 you have to do 3 questions. So you have understood the pattern, and all the questions are not negative. So shortlisting will be, there is a factor of a year basically. So if you have filled the form within the year, then you cannot sit for the another recruitment cycle of the same year. What I'm saying is basically, so within 1 year if you have applied already and they have gone through the recruitment processes, then they do not advise it to apply. In fact, they advise you to apply next year. Then there is a so earlier during the corona time, they actually developed the software to put it on the on your laptops and computer system. And then because it's not corona anymore, so they have arranged some dedicated center. There is a dedicated center where you go and appear for the exam just like any other competitive exam. Exams happen in a physical mode, so you have to go there and be present. The timing is of 20 minutes. So basically 38 question in total, but you have 120 minutes, and out of which 3 questions are subjective, so it takes time, right? 35 objective like I written, and out of 3 out of 5 are subjective. You have 3 sections, A, B and C, right? So A sections talk about all the objective questions, and these are more a very clear cut. There is a distinction basically what should be there, and most of them are very situational based and related to what you're going to do in the field. If it is about situations where a teacher has to do something, it is about the situations where the school head has to do something, or it is about on the part of the student. So that's the part A. Part B is relatively tougher because you have options very closely related. So you don't have for example, you might see all the options as very important, but that's not the case. So I think they have allotted different marks to the different options, and that is why they are they're very tough to choose from. And then third sections is again there are certain situations and they have asked for your opinion and your way forward on the same. So I'm exclusively going to discuss about section C and what all came on this recent exam, because A and B, again, they actually ask for us to submit the paperwork. So I don't got the paper. I have not got any paper. So to discuss about A and B, particularly which questions came, but a vague idea about, I think, section B question I have, so I have put it into this video, but not at all of the section A. So we're exclusively going to discuss about section B because this is very clear in my head, and it's a subjective section. So I hope that this is of the higher marks and it's going to help you. So there was a situation where X is a teacher, and in this and that school, she went to the workshop and learned about the concept of flip teaching, right?
एक एक्स नाम की टीचर है या फला फला नाम की टीचर है, वो एक स्कूल में पढ़ाती है, वो एक वर्कशॉप में जाती है अटेंड करने और फ्लिप टीचिंग टेक्निक के बारे में पता करके आती है। आफ्टर द फिज़िकल मोड लर्निंग फ्रॉम द वर्कशॉप, जब वो खुद से फिज़िकली वहाँ पे वो जब वो सीख जाती है तो वो क्या करती है, शी ऑल्सो लर्न मोर अबाउट इट फ्रॉम द ऑनलाइन सोर्सेज। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, इट्स नॉट एज इट इज़, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बट आई विल टेल यू द सिचुएशन। ठीक है, वो क्या करती है, ऑनलाइन सोर्सेज से भी अपनी जो वर्कशॉप की लर्निंग्स है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश करती है और उसके बाद उसे क्लासरूम में यूज़ करने की कोशिश करती है। देन शी डिसाइडेड टू यूज़ द सेम इन हर क्लासरूम, but she found herself in a disappointing conditions when majority of the student of her class did not came prepared। लेकिन क्या होता है, अपनी क्लास में जब वो स्टूडेंट को ये टास्क देती है कि अब आपको ये जो फ्लिप टीचिंग मेथड है उसके तहत उसके अंदर कुछ चीज़ें तैयार करके लानी है, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट होती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो प्रिपेयर करके नहीं आए होते हैं। तो व्हाट शुड शी कैन डू इन सच अ सिचुएशन, तो उसको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। सो आपको अराउंड A4 साइज़ का एक पेपर मिलता है, यू कैन राइट मैक्सिमम अंडर 500 और 500 words, right? Then the second situation was, X is a teacher of Kannada language and she has to teach the language at the primary level। जो एक पर्सन है, ये प्राइमरी लेवल की कन्नड़ लैंग्वेज की टीचर है और इन्हें क्या करना है, वो जो लैंग्वेज है वो प्राइमरी लेवल पे सिखानी है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट कैसे होते हैं। देन क्या करती हैं, वो पिक्चर कार्ड्स लेकर आती है, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। वो पिक्चर कार्ड्स लेकर आती हैं, उन पिक्चर पे अलग अलग एनिमल्स होते हैं और वो 1 by 1 स्टूडेंट से पूछती हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द क्लास। क्या करती है, वो टीचर जाती है और वो बोलती है क्या है ये, व्हाट डिड यू सी, शोइंग कार्ड्स ऑफ द एलिफेंट, और स्टूडेंट बोलता है आने, स्टूडेंट आने बोल देता है, टीचर बोलती है गुड, बट दैट्स व्हाट द वी कॉल अदरवाइज, व्हाट इज़ द फॉर्मल एंड कन्नड़ा वर्ड फॉर दिस। तो उसने बहुत ही लोकल लैंग्वेज का जो ये आम बातचीत की जो भाषा होती है उसका एक वर्ड यूज़ किया आने। तो टीचर ने बोला गुड, लेकिन अब आप इसे बताइए कि कन्नड़ा लैंग्वेज में क्या बोलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी में शायद उस शब्द का सही अर्थ बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, सो विच इज़ लोकली, सो टीचर्स अगेन उसको जब दिखाती है स्टूडेंट फिर से बोलता है आने, एंड ये ब्रैकेट में है ना, विच इज़ अ लोकली कॉल्ड वर्ड। तो टीचर उसको बोलती है नहीं, इट इज़ सालार। तो उसको बताती भी है कि इसका नाम क्या है, सालार नाम होता है। नाउ लुक एट ईच कार्ड एंड टेल मी अगेन। ठीक है, फिर से वो उन कार्डों को दिखवाती है और फिर से उनसे पूछती है कि ये क्या है। तो स्टूडेंट बोलता है, स्टूडेंट उसको कुछ आंसर नहीं देता, तो टीचर दूसरे स्टूडेंट पे चली जाती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द इंटायर सिचुएशन, और आपको कैसा लगा ये सारा देख के, अच्छा फील हुआ, बुरा फील हुआ, तो आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन था, तो टोटल 5 क्वेश्चन थे जिसमें से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन आई कैन डिस्कस। देयर इज़ अ प्राइवेट स्कूल, उसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं, रिलीजियस ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनकर आते हैं, लेकिन जो स्कूल है वो उन सबको बैन करा हुआ है। उसका मानना है कि जो रिलीजन को सिग्निफाई करने वाले जितने भी चीज़ें होती हैं वो इक्वालिटी को कम करती हैं। तो ऐसे में हम इक्वालिटी लाने के लिए सारे स्टूडेंट को ही मना कर रहे हैं कि आप कुछ भी पहन के नहीं आएंगे, बी इट टर्बन जो पगड़ी होती है सरदारों की, या फिर अगर किसी ने कोई भी तिलक लगाया हुआ है या कुछ भी पहना हुआ है। तो यू अंडरस्टैंड दैट इज़ वेयर व्हाट। तो उस सिचुएशन पे आपका क्या ओपिनियन है, आपको लगता है कि ये स्कूल का अच्छा कदम है या कैसा कदम है? ऑब्जेक्टिव में इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट आई गॉट टू नो वाज ऑफ न्यूज़पेपर कटिंग में दो समुदायों के बीच में झगड़े को दिखाया गया है। तो इसमें आप ऐसा क्या करेंगे? तो ऑप्शंस थे कि आप उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे या आप उसे क्लास में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा, आप अपने ओपिनियन को क्लास में शेयर करेंगे। और आप क्या करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को सिलेबस में से दिखाकर आप उसको एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट को आप बच्चों को समझाएंगे। तो ये एक था। और इसके अलावा देर वॉज अ मैथमेटिक क्वेश्चन इन द 5 ऑफ द सब्जेक्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन द क्लाइमेट रिलेटेड
stuff. So Ministry of Forest and Environmental Sciences, some ministry has made some climate change, plastic, beat the plastic wala, single use plastic wala rule. So what is your opinion about it, and कैसे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा successful बनाएंगे? So these were the all situations in the third sections. For section A and section B is very rare to recall and find out from other people. So but I can definitely covers the other stages syllabus, because that's what I'm going to head and make video for, if this video goes really well. So I hope you understand. If you have any questions and any confusion regarding it, please you can comment down. I can also covers how the next stage is gonna be. So till then, take care, bye bye.